ان لاسٹ ایئر ریاست پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں باشمول فوج، پولیس، ایف سی، انٹیلیجنس ایجنسیز، انہوں نے کل ملا کر 75,175 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے۔ ریاست دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم، دہشت گردی کے خلاف ریاست کا موقف دو ٹوک اور واضح۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ پوری قوم کی جنگ ہے۔ گزشتہ 5 سال میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اہم اقدامات کیے، 2597 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد ضروری ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی اہم نیوز کانفرنس۔ مختلف کریڈ کے دہشت گرد آرگنائزیشنز وہاں سے آپریٹ کر رہی ہیں۔ So that is what is happening, starts happening in 2021. وہاں پہ انٹرنیشنلی لیول کے لیے اوپر اگر آپریٹ کرنے والی آرگنائزیشن القاعدہ ہے تو وہاں پائی جاتی ہے۔ ریجنل لیول پہ داعش، ISIS آپریٹ کر رہی ہے تو وہاں پائی جاتی ہے۔ پاکستان کے لیے اسپیسیفک BLA ہے، فتنہ الہندوستان، TTP ہے، فتنہ الخوارج، اس کا گارڈ، اس کی تربیت گاہیں، اس کی لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہے۔ افغان طالبان سب سے بڑے خارجی اور فتنہ الخوارج کے سرپرست ہیں۔ افغان طالبان زر کے شیدائی ہیں، اپنے مذموم عزائم کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ افغانستان دہشت گردی کا گڑھ بن چکا ہے۔ افغانستان میں کئی دہشت گرد تنظیموں کے سرغنہ اور تربیتی مراکز موجود ہیں۔ دوحہ معاہدے میں طے ہوا تھا کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دی جائے گی۔ افغانستان کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں۔ DGISPR۔ افغان طالبان رجیم کا بیانیہ حقائق پر مبنی نہیں۔ پاکستان کے خلاف کالعدم TTP اور BLA کی قیادت اور تربیتی مراکز افغانستان میں ہیں۔ چین کے خلاف ETIM اور وسطی ایشیا کے خلاف IMU بھی افغانستان میں سرگرم ہے۔ غیر ملکی دہشت گردوں کی موجودگی پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ پاکستان میں گزشتہ سال دہشت گردی کے 10 بڑے واقعات میں افغانی ملوث تھے۔ DGISPR نے افغانستان سے پاکستان میں کی جانے والی دہشت گردی کے ثبوت میڈیا کے سامنے پیش کر دیے۔ PTI قیادت ہر فورم پر دہشت گردی کے خلاف آپریشنز کی مخالفت کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں بیٹھ کر جھوٹا بیانیہ بنایا جاتا ہے، دلائل کے بجائے الزام تراشی کی جاتی ہے۔ اپنے صوبے اور علاقوں کو دہشت گردوں کے حوالے کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کیا یہ مٹا اور سوات کے لوگوں کی قربانیاں بھول گئے ہیں؟ ہم حق پر ہیں اور حق نے غالب آنا ہے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری۔ 144 آئی تھنک بلین $US کی بات کر رہے ہیں کہ دیٹ واز پمپڈ انٹو ریکنسٹرکشن آف افغانستان۔ ایسے ہی ہے، اینڈ دے آر آلسو سیئنگ کہ ویئر دیٹ منی ہیز گون۔ اب وہ پیسہ جب بند ہوتا ہے تو اس وار اکانومی کو، جن کی انہیں عادت پڑی ہوتی ہے، اس وار اکانومی کو چلانے کے لیے وہ وار کو دہشت گردی کی شکل میں پوری ریجن میں آگے سپریڈ کرتے ہیں۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان بھارتی پراکسیز۔ بھارت اور افغان طالبان رجیم خطے خاص طور پر پاکستان میں دہشت گردی کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ بھارت اور افغان طالبان کا گٹھ جوڑ خطے کے امن کے لیے نقصان دہ ہے۔ دہشت گرد نیٹ ورک سرحد پار منظم انداز میں کام کر رہا ہے۔ خارجی دہشت گردوں سمیت ہر طرح کی دہشت گردی کے لیے زیرو ٹالرنس ہے۔ DGISPR۔ ہم پاکستان کی عوام، پولیس، افواج، FC ان کے شہداء کو سلام پیش کریں۔ I would request all of you to please rise and those in uniform to salute. DGISPR کا مسلح افواج کے شہداء کو خراج عقیدت۔ ہمارے جوان ریاست اور عوام کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ شہداء ملک کے تحفظ اور مستقبل کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں۔ قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دے گی۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری۔
खसारे का शिकार रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी हुकूमत की अवलीन तरजीह। PIA के 75% हिस्स की कामयाब निजकारी बारिश का पहला खतरा। वजीर आजम की निजकारी कमीशन में इस्लाहात का अमल तेज करने की हिदायत। निजकारी कमीशन को डिजिटाइज और तमाम तैनातियां इंतहाई शफाफ अंदाज में की जाएं। निजकारी के तमाम मंसूबों का बैनुल अक़वामी मयार की फर्म से थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाए। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ। वजीर आजम की हिदायत पर गैस कीमतों में आइंदा 6 माह तक कोई इजाफा नहीं होगा। गैस सेक्टर में सर्कुलर डेट का इजाफा रुक गया। कतर से इजाफी LNG कार्गो आलमी मंडी में मुंतकिल करने का कामयाब मुआहिदा हुआ। इस्लाहात के बायस तमाम सारिफीन के लिए गैस की कीमतें बरकरार रहेंगी। मौसम सरमा में घरेलू सारिफीन को गैस की बेहतर फराहमी की जा रही है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक। वजीर आजम की सदारत में ज़राई शोबे के माहिरीन पर मबनी वर्किंग ग्रुप का अजलास। ज़राअत की तरक्की के लिए तहकीक पर सरमायाकारी कर रहे हैं। ज़राई शोबे में तरक्की की भरपूर इस्तेदाद मौजूद है। सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर ज़राअत की तरक्की के लिए इक़दाम कर रहे हैं। किसानों को मयारी बीज, खाद और अद्वियात फराहम कर रहे हैं। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़राई बरामदात बढ़ाने के लिए लाहे अमल तश्कील देने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और शानदार दिन। 100 इंडेक्स में 2800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,85,000 की हद को अबूर कर गया। दिन के इख्तिताम पर इंडेक्स में 2,653 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,85,062 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। 85 अरब रुपए से जायद मालियत के शेयर्स का कारोबार। नायब वजीर आजम मोहम्मद इसाक डार से ईरान के सफीर रजा मीरी मुकद्दम की इस्लामाबाद में मुलाकात। ईरानी सफीर ने नायब वजीर आजम के दाराजाती फ्रेमवर्क के तहत ताउन के लिए पेशरफ्त से आगाह किया। नायब वजीर आजम का अहम तरजीही शोबों में ईरान के साथ ताल्लुकात को मजीद वसअत देने और बाहिमी ताउन को मजीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा। दुनिया की जदीद ग्रीन टेक्नोलॉजी अब पंजाब के शहरों और देहात में। क्लीन एनर्जी के मैदान में सूबे ने सबको पीछे छोड़ दिया। वजीर आला मरियम नवाज ने 6 बायोगैस प्लांट्स की मंजूरी दे दी। लाहौर में 4 और फैसलाबाद में 2 प्लांट से क्लीन एनर्जी का अमली आगाज होगा। घरेलू तवानाई के साथ फसलों के लिए बायो फर्टिलाइजर भी फराहम होगी। वजीर आला मरियम नवाज ने स्मॉल बायोगैस प्लांट्स का काबिल अमल मंसूबा तलब कर लिया। लाहौर में वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अमन तरक्की चाहते हैं। अवाम ने मुल्क की सलामती के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी। हमें सबसे पहले पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। तारीखी फतह से पूरी दुनिया में मुसल्लह अफवाज की धाक बैठ गई। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम का पेशावर में वजीर आजम लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से बांग्लादेश के हम मनसब हसन महमूद खान की मुलाकात। JF-17 थंडर तैयारों की मुमकिन खरीदारी पर तफसीली तबादला ख्याल। ऑपरेशनल ताउन और इदारा जाती हम आहंगी मजबूत बनाने पर गौर। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का बांग्लादेश एयरफोर्स की मुआवनत के आज़म का यादा। सुपर मुशाक ट्रेनर तैयारों की तेज तरीन फराहमी, मुकम्मल तरबियत निज़ाम और तवील मुद्दती मुआवनत की यकीन दहानी। बांग्लादेशी वफ्द का अहम तनसीबात का दौरा। ISPR, साइबर, खलाई, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और बगैर पायलट निज़ाम की सलाहियतों का मुशाहिदा। बलोचिस्तान में यकसा कानून के नफाज से मुतालिक दरीना इंतजामी बहाम खत्म। लेविस फोर्स बलोचिस्तान पुलिस में कानूनी तौर पर बाकायदा जम A और B एरिया कैटेगरी की तकसीम खत्म कर दी गई। फैसले से रियासती जिम्मेदारी वाज़े और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का दायरा मजबूत होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी। भारतीय रियासती तशद्दुद की अलमनाक दास्तान। सानेहा सोपूर 6 जनवरी 1993 को निहत्ते कश्मीरी शहरियों को सफाक भारत ने मुनज़्ज़म रियासती कार्रवाई का निशाना बनाया। 3 दहाइयां गुजरने के बावजूद सानेहा सोपूर के मुतासरीन आज भी इंसाफ और आलमी तवज्जो के मुंतज़िर।
वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो न्यूयॉर्क की अदालत में पेश। मनशियात और दहशत गर्दी के इल्जामात। मादुरो का इल्जामात तस्लीम करने से इनकार। अमरीकी अदालत का निकोलस को 17 मार्च को दोबारा पेश करने का हुक्म। वेनेजुएला की सूरत हाल पर गौर के लिए सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। अमरीकी फौजी कार्रवाई पर आलमी बरादरी में शदीद तशवीश। वेनेजुएला के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। तमाम फरीक अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पासदारी करें। जामे और जमहूरी मुज़ाकरात के जरिए मामला हल किया जाए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के वेनेजुएला में हालिया पेशरफ्त पर गहरी तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा का मंशूर हमें किसी भी रियासत की इलाकाई सालमियत या सियासी खुदमुख्तारी के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से रोकता है। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात और सिफारतकारी होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के कायम मुकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का बयान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी। ग्रीनलैंड के वजीर आजम का सख्त रद्द-ए-अमल। मजीद दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन मुज़ाकरात मुनासिब चैनल और बराबरी की सतह पर होंगे। फ्रांस, डेनमार्क और बरतानिया का ग्रीनलैंड के साथ इजहार यकजहती। गजा के अलमवासी पनाहगुज़ीन कैंप पर इसराइली बमबारी। कमसिन बच्चे समेत 2 अफराद शहीद, 4 जख्मी। जंगबंदी मुआहिदे के बाद इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 422 हो गई। गजा के 88% इमारतें मुनहदम होने से 20 लाख फ़लस्तीनी ख़ैमों में रहने पर मजबूर। फ़लस्तीनियों को इमदाद की फौरी फराहमी के लिए रफ़ा बॉर्डर खोलने का मुतालबा। मुल्क के शिमाली इलाकों और बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की मुमकिना लहर। NDMA का अलर्ट जारी। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, पोटोहार रीजन और शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी बरकरार रहने का इम्कान। सांस की बीमारियों में इजाफा हो सकता है, शहरी एहतियात करें, तिब्बी माहिरीन की राय। पाकिस्तान ने 3 मुल्की अंडर 19 वनडे सीरीज जीत ली। फाइनल में जिम्बाब्वे को 9 विकेटों से शिकस्त। जिम्बाब्वे की टीम 44.4 ओवर्स में 158 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान ने हदफ 16.2 ओवर्स में 1 विकेट पर हासिल कर लिया। समीर मिन्हास का आलमी रिकॉर्ड। 42 गेंदों पर अंडर 19 क्रिकेट की तेज तरीन सेंचुरी बनाकर भारतीय खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुबारकबाद। वर्ल्ड कप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ইন্ডিয়া আমরা যাব না, তারপরে ভেন্যু যদি আইসিসি ঠিক করে যে বাংলাদেশে খেলা হবে বা শ্রীলঙ্কায় খেলা হবে, সেটা অন্য ব্যাপার। কিন্তু ভারত না যাওয়ার সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি, কারণ আমরা নিরাপত্তা বোধ করছি না। भारत महफूज मुल्क नहीं। टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए किसी सूरत भारत नहीं जाएगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर आसिफ अकबर का 2 टोक ऐलान। हिंदू इंतहा पसंदों की धमकियों के बाद भारत ने मुस्तफिजुर रहमान को IPL से बाहर किया। जवाब में बांग्लादेश ने अपनी टीम भारत न भेजने का ऐलान किया और IPL नशरियात पर पाबंदी लगा दी। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान पाकिस्तान सुपर लीग खेलेंगे। मुस्तफिजुर रहमान ने PSL के लिए रजिस्ट्रेशन करा दी। वो इससे कबल PSL में लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी कर चुके हैं। लाहौर कलंदर्स की जानिब से उन्होंने 5 मैचेस में 4 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान T20 सीरीज का कल से दंबोला में आगाज। मुकाबला शाम 6:30 बजे PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। सीरीज ट्रॉफी की रूनुमाई, सलमान अली आगा और दासन शनाका की शिरकत। दूसरा मैच 9 और तीसरा मैच 11 जनवरी को दंबोला ही में खेला जाएगा। Travis heaves to the left. Oh. Well, oh my word. As it goes up and over. और सिडनी में एशेज सीरीज का 5वां टेस्ट ऑस्ट्रेलिया 134 रन की बढ़तरी हासिल करने में कामयाब। तीसरे रोज खेल के इख्तिताम पर पहली इनिंग्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 518 रन बना लिए। ट्रेविस हेड के 163 रन, कप्तान स्टीवन स्मिथ 129 रन पर नॉट आउट। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 384 रन बनाए थे। एशेज सीरीज देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। Oh, he's really thrown his hands through there. Dave Smith continues his love affair with the... अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया खान।
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ آپ رہیے پی ٹی وی نیوز کے ساتھ۔ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ درست ہر وقت بر وقت۔ ناظرین، مسلح افواج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ کسی کی سیاست پاکستان سے بڑھ کر نہیں۔ پی ٹی آئی قیادت ہر فورم پر دہشت گردی کے خلاف آپریشنز کی مخالفت کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں بیٹھ کر جھوٹا بیانیہ بنایا جاتا ہے، دلالی کی بجائے الزام تراشی کی جاتی ہے۔ انہوں نے سوال پوچھا کہ آپریشن نہیں کرنا تو کیا دہشت گردوں کے پیروں میں بیٹھنا ہے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھارتی میڈیا کہتا ہے کہ 2026 میں بھارت اور افغانستان مل کر پاکستان پر حملہ کریں گے۔ انہوں نے جوابی للکار میں کہا کہ آ جاؤ، تم دونوں کا شوق پورا کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی نیوز کانفرنس کی تفصیل رانا شہزاد السلام سے۔ مسلح افواج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے راولپنڈی میں بطور ڈی جی آئی ایس پی آر طویل ترین نیوز کانفرنس میں ریاست پاکستان کا انسداد دہشت گردی بیانیہ نہایت دبنگ انداز میں میڈیا کے سامنے پیش کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے 80% واقعات خیبر پختونخوا میں ہوئے، جس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں دہشت گردوں کو سازگار ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں بیٹھ کر جھوٹا بیانیہ بنایا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا کی غیور پولیٹیکل پارٹیز، محب وطن، اس اپنی دھرتی سے پیار کرنے والے، وہ اس دہشت گردی خلاف کھڑے ہوئے یا نہیں کھڑے ہوئے؟ انہوں نے سینوں پہ گولیاں کھائی، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مرنے کو تیار، ہم نہیں کھڑے ہوں گے، ہم ان کے ساتھ شامل ہوں گے۔ کہ اچھا جی ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو پھر کرنا کیا ہے؟ پھر کیا دہشت گردوں کے پیروں میں بیٹھ جانا ہے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا جو شخص کہتا ہے میں بے اختیار تھا، اس نے آرمی چیف کو قوم کا باپ ڈکلیئر کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بے اختیار ہونے کا بیانیہ مضحکہ خیز ہے۔ جو اس وقت لیڈر تھا جو کہ اپنی پارٹی کو ایک ایز اے بالکل ڈکٹیٹر کے طور پہ چلاتا ہے، آپ دیکھیں کہ پوری پارٹی، وہ کہتے ہیں نا جمہوریت سب سے ساری پارٹی تو ایک بندے کے ریوالو کرتی ہے، اس وقت بھی پوری حکومت ایک بندے پہ ریوالو کرتی تھی۔ اس وقت بھی ان کو تھا بات چیت کرو، اور وہ جس چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ بات چیت کرو۔ اور جو اس وقت ڈی جی آئی تھے وہ کدھر ہے اس وقت، جن کو انہوں نے اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا؟ آپ یہ ادارے پہ نہیں لگا سکتے، یہ شخصیات کا کھیل تھا۔ بھائی وہ وزیر اعظم تھا، وہ بااختیار وزیر اعظم تھا، جو بعد میں کہتا ہے میرے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں تھا، فیصلہ نہیں کرتا ہوں۔ ایک سوال پر مسلح افواج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ بھارتی میڈیا ہر روز پاکستان کے خلاف ہرزہ افزائی کر رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 2026 میں بھارت اور افغانستان مل کر پاکستان پر حملہ کریں گے۔ انہوں نے جوابی للکار میں کہا ہم دونوں کا شوق پورا کریں گے۔ ہماری لیڈرشپ کے پاس مکمل کلیئرٹی ہے، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ملٹری لیڈرشپ ہے، اور ہمارے عوام کے پاس بھی کلیئرٹی ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے ایک اللہ کا تحفہ ہے، اس پہ اللہ کی بڑی برکت ہے، تو لے آؤ جو تم نے کرنا ہے، دائیں سے آنا ہے، بائیں سے آنا ہے، اوپر سے آنا ہے، نیچے سے آنا ہے، اکٹھے آنا ہے، کسی کے ساتھ آنا ہے۔ ایک بار مزہ نہ کرا دیا نا تو پیسے واپس۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ریاست حقائق قوم کے سامنے رکھنے کے لیے شواہد دکھا رہی ہے، کچھ پردہ نشین دہشت گردوں کا بھی سراغ ملا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کے 14 نکات پر تمام جماعتیں متفق ہیں۔ صوبائی حکومتوں نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گراس روٹ لیول پر کیے گئے کاموں کے دورس نتائج نکلیں گے۔ ایک سوال پر ڈی جی ایس پی آر نے بتایا کہ اب تک 19 لاکھ سے زائد غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی افراد کو ملک بدر کیا جا چکا ہے۔ رانا شہزاد السلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ افغان طالبان خارجی اور فتنۃ الخوارج کے سرپرست ہیں، وہ زر کے شدائی ہیں اور اپنے مذموم عزائم کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان دہشت گردوں کا گڑھ بن چکا ہے۔ بھارت اور افغان طالبان کا گٹھ جوڑ خطے کے امن کے لیے نقصان دہ ہے۔ DGISPR نے کہا کہ پاکستان میں گزشتہ سال دہشت گردی کے 10 بڑے واقعات میں افغانی ملوث تھے۔ مزید انہوں نے کیا کہا، تفصیل شیئر کر رہے ہیں ڈاکٹر عمر ملک اپنی اس رپورٹ میں۔ DGISPR نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم متحد ہے، دہشت گردوں کو بازور طاقت شکست دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 5 سال میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اہم اقدامات کیے، روزانہ کی بنیاد پر 200 سے زائد آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ ان لاسٹ ایئر ریاست پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں باشمول فوج، پولیس، FC، انٹیلیجنس ایجنسیز، انہوں نے کل ملا کر 75,175 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے، which comes to 206 IBOs per day۔ اس سال جو ٹوٹل دہشت گرد جو ٹیررسٹ انسیڈنٹس کہتے ہیں ان کی تعداد ہے 5,397۔ جو ٹوٹل ہماری شہادتیں ہیں پاکستانیوں کی دہشت گردی کی جنگ میں وہ ہیں 1235۔ DGISPR نے کہا کہ دنیا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے موقف کی معترف ہے۔ افغانستان اس وقت دہشت گردی کا گڑھ بن چکا ہے۔ پاکستان میں گزشتہ سال دہشت گردی کے 10 بڑے واقعات میں افغانی ہی ملوث تھے۔ مختلف کریڈ کے دہشت گرد آرگنائزیشنز وہاں سے آپریٹ کر رہی ہیں۔ القاعدہ ہے تو وہاں پائی جاتی ہے، ریجنل لیول پہ داعش ISIS آپریٹ کر رہی ہے تو وہاں پائی جاتی ہے۔ پاکستان کے لیے اسپیسیفک BLA ہے، فتنہ الہندوستان، TTP ہے، فتنہ الخوارج، اس کا گڑھ، اس کی تربیت گاہیں، اس کی لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہے۔ ETIM چائنا کے لیے اسپیسیفک وہاں موجود ہے۔ IMU ازبکستان سینٹرل ایشیا اسپیسیفک وہاں پہ موجود ہے۔ حزب التحریر اگین سینٹرل ایشیا اسپیسیفک کہاں ہے؟ وہاں موجود ہے۔ سو اٹ بیکمز ایکچولی دی سینٹرل پوائنٹ فرام ویئر آل دی ٹیررسٹ آف آل ٹائپس آر بینگ نرچرڈ۔ کو اگر آپ اپنا یادداشت پہ نگاہ ڈالیں تو آپ کو یہی وہ 10 واقعات بڑے نظر آئیں گے۔ Who are all involved in all these high impact? They were all Afghanis. DGISPR نے کہا کہ مارکہ حق اور افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے بعد پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ ہوا۔ بھارت افغانستان کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ 144 I think بلین US ڈالرز کی بات کر رہے ہیں کہ that was pumped into reconstruction of Afghanistan۔ ایسے ہی ہے۔ And they are also saying where that money has gone۔ اب وہ پیسہ جب بند ہوتا ہے تو اس وار اکانومی کو جن کی انہیں عادت پڑی ہوتی ہے اس وار اکانومی کو چلانے کے لیے وہ وار کو دہشت گردی کی شکل میں پوری ریجن میں آگے سپریڈ کرتے ہیں۔ اینڈ دے فائنڈ نیو پیٹرنس، نیو فائنینشیل اسپانسرس۔ بیس آف آپریشن جو ہے وہ افغانستان کے اندر افغان طالبان پرووائڈ کر رہے ہیں، ہندوستان کا پیسہ، ہندوستان کی سرپرستی، اور اسی طرح جو میں نے باقی بھی ریجنل آپ کو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز بتائی ہیں، مختلف پراکسیز مختلف جگہوں سے جہاں سے کوئی اسپانسر ملے تاکہ اس وار اکانومی کو چلایا جائے۔ DGISPR نے کہا کہ دہشت گردوں کا پاکستان اور بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں۔ افواج پاکستان کے خلاف دہشت گرد جھوٹے بیانیوں کو فروغ دے رہے ہیں۔ دی فائٹ آف دس کاؤنٹر ٹیررزم اٹ از ناٹ اونلی، یہ آپ کی خالی جون سی ہے، یہ کائنیٹکس میں نہیں آپ کی فوج اور آپ کی لا انفورسمنٹ لڑ رہی، اٹ از آلسو ان دی نان کائنیٹک۔ A part of it is in the non-kinetic, which is the engagement, which is the communication, which is the social maneuver۔ یہ جو آپ کو بیانیہ بناتے ہیں کہ وہاں بدامنی ہے، وہاں کے عوام کے اندر اور ریاست کے درمیان میں کوئی گیپ ہے، absolutely not۔ پاکستان کی عوام، پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی افواج اس طرح ساتھ ہے۔ You go to the villages, you go to the ghots, you go to the killies, and this is what you will find over there۔ DGISPR نے کہا کہ قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کو رائے گاہ نہیں جانے دے گی۔ اس موقع پر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہید ہونے والے پاک افواج کے جوانوں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا۔ ڈاکٹر عمر ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، راولپنڈی۔
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने निजकारी कमीशन में इस्लाहात के हवाले से काम तेज करने की हिदायत करते हुए कहा है कि PIA की 75% हिस्से की कामयाब निजकारी बारिश का पहला कतरा है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत निजकारी कमीशन के अमूर पर इजलास इस्लामाबाद में हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि खसारे का शिकार रियासती मलकियती इदारों की निजकारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। निजकारी कमीशन में निजी शोबे और मार्केट से बेहतरीन सलाहियतों के हामिल मुतल्लिका अफरादी कुव्वत को तैनात किया जाए और तमाम तर तैनातियाँ इंतहाई शफाफ अंदाज में की जाएँ। वज़ीर आज़म ने निजकारी कमीशन को डिजिटाइज करने की हिदायत करते हुए कहा कि निजकारी कमीशन के मंसूबों का बैनुल-अक़वामी मयार की फर्म से थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने निजकारी कमीशन में ताल्लुकाती आमा और मार्केटिंग के शोबे को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की। इजलास को निजकारी कमीशन में जारी इस्लाहात से मुतालिक ब्रीफिंग में बताया गया कि मार्केट से एडवाइजर्स और कंसल्टेंट्स भर्ती किए जाएंगे। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी को इब्तदाई तौर पर 2 बैचेस में रखा गया है। पहले बैच में इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी और फैसलाबाद इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की निजकारी होगी। दूसरे बैच में हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और सखर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की निजकारी होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे की इस्लाहात पर तजावीज़ के हवाले से वर्किंग ग्रुप का जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़रई शोबे में इस्लाहात और किसानों को आलमी सतह पर राइज अतवार से मुतारिफ कराना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ज़रई शोबे में इस्लाहात के साथ साथ सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर ज़राअत की तरक्की के लिए इक़दामात कर रही है। फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए किसानों को मयारी बीज, मुनासिब कीमत पर बरवक्त खाद और ज़रई अद्वियात की फराहमी के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़रई अजनास की प्रोसेसिंग और बरामदात के काबिल अशिया की तैयारी के लिए पॉलिसी सतह पर इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हाल ही में 1000 पाकिस्तानी तलबा को ज़राअत की जदीद टेक्नोलॉजी की तरबियत के लिए चीन भेजा गया। पाकिस्तान के ज़रई शोबे में तरक्की की भरपूर इस्तेदाद मौजूद है। मौजूदा वसाइल में रहते हुए ज़राअत की तरक्की के लिए तहकीक पर सरमायाकारी कर रहे हैं ताकि फी एकड़ पैदावार में इजाफा हो। वज़ीर आज़म ने कहा कि माहीगीरी, फलों और उनसे तैयार करदा मसनूआत की बरामदात में इजाफे के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। साहिली पट्टी पर पाम ऑयल की पैदावार के लिए पॉलिसी इक़दामात पेश किए जाएं और आइंदा 5 साल में ज़रई बरामदात बढ़ाने के हवाले से लाहे अमल तश्कील दिया जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सीनियर सियासतदान राजा ज़फ़रुल हक की रिहाइशगाह पर गए और उनकी अयादत की। वज़ीर आज़म ने राजा ज़फ़रुल हक की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने पार्टी और पाकिस्तानी सियासत के लिए उनकी खिदमात को सराहा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार से ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। ईरानी सफ़ीर ने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 2 तरफ़ा इदाराजाती फ्रेमवर्क के तहत ताउन के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ शोबों में होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म ने अहम तरजीही शोबों में ईरान के साथ ताल्लुकात और बाहमी ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की जानिब से नायब वज़ीर आज़म इसाक डार को साल नौ की मुबारकबाद दी और उनको एक ख़त भी पेश किया जिसका खैर मकदम करते हुए नायब वज़ीर आज़म ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार और म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा थान सुए के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ जिसमें दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की मौजूदा सतह का जायजा लिया गया। दोनों रहनुमाओं ने मुस्तक़बिल में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई मामलात पर करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तरक्याती मनसूबों पर काम की रफ्तार मजीद तेज करने के लिए सख्त हिदायत जारी की हैं। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम, लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम, मिसाली गाँव, साफ पानी, PHA और देही सड़कों के मनसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। मिसाली गाँव मनसूबे के तहत 224 देहात में काम शुरू हो चुका है जबकि पहले मरहले में 469 देहात में वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, पार्क्स, फुटपाथ और स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की जाएंगी। वज़ीर आला ने तमाम मनसूबों की रोजाना निगरानी के लिए लाइव डैश बोर्ड कायम करने की हिदायत की है। इजलास में बताया गया कि अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत 1 लाख से ज्यादा अफराद को कर्जे जारी किए गए हैं। 65,000 घर मुकम्मल हो चुके हैं। वज़ीर आला ने सड़कों और सीवरेज के निज़ाम का बरवक्त मुकम्मल करने, साफ पानी के मंसूबों को तरजीह देने और सूबे भर में PHA कायम करने के लिए जामे प्लान तलब कर लिया है। पंजाब में बायोगैस और वेस्ट टू एनर्जी के जरिए खुद कफालत और ग्रीन एनर्जी इकोनॉमी की बुनियाद रख दी गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में 6 बायोगैस प्लांट्स की मंजूरी दे दी गई। इजलास में बताया गया कि लाहौर में 4 और फैसलाबाद में 2 बायोगैस प्लांट से घरेलू तवानाई के साथ फसलों के लिए बायो फर्टिलाइजर भी फराहम होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने स्मॉल बायोगैस प्लांट्स का काबिल अमल मनसूबा तलब कर लिया। इजलास में मल्टीपल फ्यूल बायो रिफाइनरी के लिए फिजिबिलिटी स्टडी की भी मंजूरी दी गई। इजलास में लाहौर में वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया गया। वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट से इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो बस सर्विस को सस्ती बिजली फराहम की जाएगी।
नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक और रिकॉर्ड 100 इंडेक्स 2653 पॉइंट्स के इजाफे से मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,85,062 पर बंद हुआ। तफसील शेयर कर रहे हैं जमीर अब्बास। हुकूमत की मुस्बत इक्तिसादी पॉलिसीज अपना असर दिखा रही हैं। एक्सपोर्ट्स और तरसीलाती ज़र में इजाफे की वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हो रहे हैं, जिससे डॉलर के मुकाबले में रुपया मजबूत हो रहा है। इन पॉलिसीज की वजह से सरमायाकार पुरएतमाद तरीके से कैपिटल मार्केट में सरमायाकारी कर रहे हैं। आज दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 3073 पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड हुआ, जिसके बाद मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,85,481 पर भी पहुंची। 1 जनवरी से लेकर अब तक स्टॉक मार्केट में 11,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है। माहिरीन का कहना है कि महंगाई की शरह में नुमाया कमी के बाद आने वाली ज़री पॉलिसी में मजीद कटौती का इम्कान है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में तेजी का तसलसल जारी रह सकता है। गुज़िश्ता 60 ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो मार्केट में अराउंड 10,000 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा हो चुका है। पॉजिटिव इंडिकेशंस आ रहे हैं, मार्केट में लिक्विडिटी कंटिन्यू आ रही है। आज मार्केट में कुछ उतार चढ़ाव भी देखा गया, मार्केट अपसाइड पे कुछ प्रॉफिटिंग भी हमें देखने में आई, लेकिन जल्दी मार्केट में रिकवरीज आ गई। एक मुस्बत इकदाम है, हम देख रहे हैं जो गवर्नमेंट की जो मुस्बत पॉलिसीज हैं उसके रिफ्लेक्शन मार्केट के अंदर नजर आती है। यही वजह कि जहां डिप्स आती हैं वो मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनती हैं, खासतौर पे बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, फार्मास्यूटिकल और ऑटो सेक्टर में हम देख रहे हैं कि फ्रेश लिक्विडिटी मार्केट के अंदर आ रही है। कंटिन्यू मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड की बाइंग देखने में आ रही है। आज मार्केट में मजमूई तौर पर 563 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसमें 238 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में तेजी, 218 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 107 कंपनियों के शेयर्स की कीमतें मुस्तहकम रही। आज मार्केट में 85 अरब 32 करोड़ रुपए की लागत के 5,95,000 सौदे हुए, जिनमें 1 अरब 30 करोड़ से ज्यादा के शेयर्स का कारोबार हुआ। जमीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मुल्क में शदीद सर्दी से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया है। NDMA का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी का इम्कान है। माहिरीन का कहना है कि शदीद सर्दी से सांस की बीमारियों में इजाफा हो सकता है। शहरी एहतियात करें, शदीद सर्दी से फसलों को भी नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। काश्तकार हिफाजती तदबीर यकीनी बनाएं। NDMA ने कहा कि मुमकिन शदीद धुंध के बायस मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में सफ़र में एहतियात बरतें। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। उधर पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध छाए रहने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में शदीद सर्द रहा। इस्लामाबाद, पंजाब, ज़ेरी, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध के बेशतर अजला में धुंध छाई रही। सबसे ज़्यादा बारिश बलूचिस्तान में लसपेला 5, कश्मीर रावलाकोट में 3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो लह -11, ज़ियारत -9, स्तौर -8, कल्लात कालाम -7, स्कर्दू -6, गोपिस -5, हुंजा, मालन जब्बा और बाड़ा चनार में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दीगर शहरों में कम से कम दर्जा हरारत की तफसील: इस्लामाबाद 1, लाहौर 8, कराची 13, पेशावर 5, कोयटा -4, मुल्तान 6, गिलगित -1, स्कर्दू -6, मुजफ्फराबाद 4, श्रीनगर -4, मरी -1, दीर -3, चित्राल -1, रावलाकोट -1 और मालम जब्बा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, खबरनामे में कुछ मजीद खबरें शामिल कर लेते हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर आइंदा 6 माह तक गैस की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस्लाहाती इक़दाम के बायस गैस के शोबे में सर्कुलर डेट का इजाफा रुक गया है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि कतर से इजाफी LNG कार्गो को आलमी मंडी में मुंतकिल करने का मुआहिदा तय पा गया है, जिससे कौमी खजाने पर दबाव कम होगा। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि मुल्क भर में घरेलू सार्फिन को गैस की बेहतर फराहमी जारी है और कोई भी मकामी गैस फील्ड बंद नहीं है। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया कि गैस नेटवर्क पर जदीद IOG मॉनिटरिंग सिस्टम फाल कर दिया गया है, जिसके तहत प्रेशर ड्रॉप की सूरत में सुई कंपनी को फौरी अलर्ट मौसूल होता है। सुई कंपनी के मुताबिक गैस की फराहमी के औकात भी बढ़ा दिए गए हैं, जो अब सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को शंघाई शहर की मास्टर प्लानिंग, डेवलपमेंट और शहरी सहूलियात के साथ तरक्की के तेज रफ्तार निज़ाम के बारे में ब्रीफ किया गया।
वज़ीर दाखिला ने शंघाई के जदीद सहूलतों से आरास्ता स्टेडियम का मॉडल भी देखा। वज़ीर दाखिला ने शंघाई अर्बन प्लानिंग के तहत तमाम मालूमात को जदीद तर्ज पर यकजा करने के निज़ाम में गहरी दिलचस्पी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि शंघाई की तरक्की हर शहर के लिए काबिल तक़लीद है। इस्लामाबाद को भी शंघाई की तर्ज पर डेवलप करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि शंघाई की तेज़ रफ्तार तरक्की से इस्तिफ़ादा करने के लिए फौरी इक़दाम करेंगे। उन्होंने विजिटर्स बुक में तासुरात भी दर्ज किए। राजिन कराची शिप यार्ड में 40 साल बाद कंटेनर शिप के नए जहाज की तामीर की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसके साथ ही कोरिया के ताउन से PNSC के लिए 1100 TEU कंटेनर शिप की तामीर का बाकायदा आगाज हो गया। वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी ने तकरीब से खिताब किया। मजीद बता रही हैं आयशा आफरीन। तकरीब से खिताब करते हुए जुनैद अनवार चौधरी ने कहा कि इस मंसूबे के तहत तैयार होने वाले कंटेनर जहाज को मुकम्मल तौर पर मुल्की वसाइल से तैयार किया जाएगा, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान की बहरी लिहाज से तिजारत में खुद इन्हिसारी बढ़ेगी बल्कि गैर मुल्की शिपिंग पर इन्हिसार भी कम होगा। जुनैद अनवार चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान की 95% तिजारत समुद्री रास्तों से होती है, जबकि ये एक मजबूत बहरी शोबा मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है और कौमी बहरी शोबे के लिए एक अहम संग मील है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब का और ख़ास तौर पे उनके साथ उनकी टीम जिसमें फील्ड मार्शल, उनका भी मैं ज़िक्र ज़रूर करूँगा। जिस जज्बे और जिस सोच के तहत सब और उनकी टीम इस तरफ अपना विजन, अपनी सोच, अपनी लगन रखती है कि पाकिस्तान की सनत, पाकिस्तान की इकॉनमी अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, मैं समझता हूँ उनकी एक सोच और जिस तरफ वो पाकिस्तान को लेके जाना चाह रहे हैं, ये आज हमारा भी उनके इस कदम में एक हमारी शमूलियत है। तकरीब से चेयरमैन पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कंपनी सुल्तान अहमद चावला ने खिताब करते हुए कहा कि नेशनल शिपिंग कंपनी और कराची शिपयार्ड और कोरिया के बाहिमी ताउन से बड़े बहरी कंटेनर जहाज को तैयार करने की पूरी सलाहियत रखते हैं और इस मंसूबे की तकमील के बाद उम्मीद है कि पूरी दुनिया से ऑर्डर्स मिलेंगे। कराची शिपयार्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर रियर एडमिरल सलमान इलियास ने मुल्की तौर पर जहाज साजी की सनत के हवाले से ब्रीफ किया। बाद में कोरिया और PNSC के दरमियान जहाज की तैयारी से मुताल्लिक जरूरी मुआहदे पर दस्तखत हुए। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, खुसूसी इक्तिसादी जोन के तहत सनती तरक्की के फ़रोग़ के लिए अहम संग मील शेखुपुरा में 220 kV कायदे आज़म बिजनेस पार्क ग्रिड स्टेशन फाल कर दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं हुसैन रजा। शेखुपुरा के खुसूसी इक्तिसादी जोन में कायम सनती यूनिट्स की बिजली जरूरियात को पूरा करने के लिए तामीर किया गया कायदे आज़म बिजनेस पार्क ग्रिड स्टेशन 4 अरब रुपए से जायद लागत से मुकम्मल किया गया है। ग्रिड स्टेशन की मजमूई ट्रांसफॉर्मेशन सलाहियत 500 MVA है, जिसे 220 kV ट्रांसमिशन लाइन्स के जरिए करीबी ग्रिड स्टेशंस में मुंसलिक किया गया है। इस मंसूबे से कायदे आज़म बिजनेस पार्क को बिजली की तरसील में बेहतरी के साथ साथ पैदावारी सलाहियत और सरमायाकारी में इजाफा मुतवक्के है। गुज़िश्ता माह 500 kV लाहौर नॉर्थ ग्रिड स्टेशन को भी फॉल किया गया है, जो नेशनल ग्रिड को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का अक्कास है। मैनेजिंग डायरेक्टर NGC इंजीनियर अल्ताफ हुसैन मलक का कहना है कि बिजनेस पार्क ग्रिड स्टेशन को तवील मुद्दती सनती तोसी और जामे समाजी और इक्तिसादी तरक्की में मदद के लिए डिजाइन किया गया है। ये मंसूबा खुसूसी इक्तिसादी जोन में सरमायाकारी को रागिब करने और रोजगार के मौके पैदा करने में अहम किरदार अदा करेगा। हुसैन रजा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा है कि जामे पेशावर को वजीर आज़म लैपटॉप स्कीम के तहत 2400 लैपटॉप्स फराहम किए जाएंगे। तफसील अदनान शाह की इस रिपोर्ट में। जामिया पेशावर में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा कि लैपटॉप खालिसतन मेरिट की बुनियाद पर दिए जा रहे हैं और ये ज़हीन तलबा इन्हें अपनी बेहतर मुस्तकबिल और मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल करेंगे। अमीर मुकाम ने कहा कि नौजवानों को बाइख्तियार बनाना वजीर आज़म शहबाज शरीफ का विजन है और हुकूमत नौजवानों को हुनरमंद, बाइख्तियार और काबिल रोजगार बनाने के लिए अमली इकदाम कर रही है। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो चल रहा है, डिजिटल यूथ हब, और इसके अलावा जो स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है, बाहर भेजने का प्रोग्राम है, लोन्स का प्रोग्राम है, स्किल प्रोग्राम है, कई कि आप पर जितना लगा लिया जाए कम है।
اور اس سے بھی زیادہ لگانے چاہیے. وفاقی وزیر نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے بے شمار مشکلات برداشت کی ہے. صوبے کے لوگ امن اور ترقی چاہتے ہیں اور حب وطن ہے. انہوں نے کہا کہ پختون قوم نے بیلٹ کے ذریعے پاکستان میں شمولیت اختیار کی اور ملک کی دفاع و سلامتی کے لیے ہر دور میں قربانیاں دی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں سب سے پہلے پاکستانیت کو ترجیح دینی چاہیے. انجینئر امیر مقام نے خیبر پختونخوا حکومت سے مطالبہ کیا کہ صوبائی وسائل اور اختیارات عوام کی فلاح کے لیے استعمال کیے جائیں. انہوں نے خیبر پختونخوا میں دانش اسکولوں کے قیام کی تجویز دیتے ہوئے کہا کہ اگر صوبائی حکومت 50% حصہ ڈالے تو باقی 50% وفاقی حکومت فراہم کرے گی. صوبائی حکومت کے بغیر کام ہو سکتا نہیں. میں اس حکومت کو کہتا ہوں آپ نے وہی تاریخ بھی جو آپ کی سیاست ہے چلایا رکھا کرے, مگر کوئی 24 گھنٹوں میں کوئی 3-4 گھنٹے ان جوانوں کو بھی دیا کرے, وہی پروگرام لانچ کرے. اور اس پروگرام میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں 50% آپ فیڈرل سے دیں گے, 50% آپ دے رہے, کیا کہ جوانوں کا مستقبل چینج ہو جائے. وفاقی وزیر نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ پاکستان کو معاشی ترقی کے راہ پر ڈالا اور مہنگائی پر قابو پایا. وفاقی وزیر نے لیپ ٹاپس تقسیم کرتے ہوئے طلباء و طالبات پر زور دیا کہ وہ اس سہولت کو تحقیق, جدت اور پاکستان کی ترقی کے لیے بروئے کار لائے. عدنان شاہ, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, پشاور. وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا ہے کہ مسافروں کو بہترین سہولتوں کی فراہمی کے لیے دن رات کوشاں ہیں. اسلام آباد میں میڈیا کو بریف کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ ریلوے میں ڈیجیٹلائزیشن کا عمل جاری ہے اور آمدن میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. حنیف عباسی نے کہا کہ کراچی سے روڑی تک ریلوے ٹریک کی اپ گریڈیشن کے لیے اے ڈی بی نے فنڈز کی منظوری دے دی ہے. انہوں نے کہا کہ صوبوں کی معاونت سے برانچ روٹس منصوبہ شروع کر رہے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے سندھ اسمبلی کے اسپیکر سید اویس شاہ نے بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات کی. اس دوران پارلیمانی امور پر بات چیت کی گئی. بلاول بھٹو زرداری سے سندھ اسمبلی کے ارکان امتیاز شیخ, فیاض بٹ اور شیخ محمد مغیری نے علیحدہ ملاقات کی اور شکارپور, دادو, جیکب آباد کے عوامی مسائل اور ان کے حل سے متعلق اقدامات سے آگاہ کیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے سینیٹر شیر الرحمان نے بھی ملاقات کی. اس دوران ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ ریاست مخالف بے بنیاد پروپیگنڈے اور انتہا پسندی کے تدارک کے لیے ادارہ جاتی تعاون اور مؤثر حکمت عملی ناگزیر ہے. کوئٹہ میں انسداد تشدد کے سینٹر آف ایکسیلنس سے متعلق اجلاس میں انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو درست سمت دکھانا اور حقائق سے آگاہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. سینٹر آف ایکسیلنس تحقیق, آگاہی, انتشار اور انسداد تشدد کے لیے مؤثر پلیٹ فارم ثابت ہوگا. میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ لیویز فورس کو پولیس میں ضم کر دیا گیا ہے. پورے بلوچستان میں یکساں قانون کے نفاذ سے اب درینہ انتظامی ابہام ختم ہو گیا ہے. لیویز اور پولیس فورس کے انضمام کے فیصلے سے ریاست کی ذمہ داری اور عوام کے تحفظ کا دائرہ مزید مضبوط ہوگا. پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے بنگلہ دیش ایئر فورس کے سربراہ ایئر چیف مارشل حسن محمود خان کی قیادت میں وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی. ملاقات کے دونوں ملکوں کے فضائی افواج کے درمیان آپریشنل تعاون اور ادارہ جاتی ہم آہنگی کو مزید مضبوط بنانے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے پاک فضائیہ کی حالیہ پیش رفت اور جدید صلاحیتوں پر بریفنگ دی. ملاقات میں JF-17 تھنڈر طیاروں کی ممکنہ خریداری پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی. مقبوضہ جموں کشمیر میں سوپور قتل عام کے متاثرہ خاندان 33 سال کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود انصاف سے مسلسل محروم ہے. KMS سروس کے مطابق 6 جنوری 1993 کو بھارتی پیراملٹری بارڈر سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں نے سوپور قصبے پر دہشت گردی کا بازار گرم کرتے ہوئے 60 سے زائد نہتے شہریوں کو شہید اور رہائشی مکانات اور دکانوں سمیت 400 سے زائد عمارتوں کو نذر آتش کر دیا تھا. عینی شاہدین کے مطابق BSF کے اہلکاروں نے ایک بس میں سے مسافروں کو گھسیٹتے ہوئے باہر نکالا اور ان میں سے 20 کو موقع پر گولیاں مار کر شہید کر دیا تھا. فوجیوں نے قریبی عمارتوں پر بارود, پیٹرول اور مٹی کا تیل چھڑک کر 400 سے زائد دکانوں اور مکانوں کو نذر آتش کر دیا. سانحے میں زندہ بچ جانے والے متاثرین نے میڈیا کو بتایا کہ فوجیوں نے شالپورہ کے پورے اشالہ خاندان کو قتل کر دیا تھا. قابض حکام نے مقبوضہ علاقے میں ڈیجیٹل پابندیاں مزید سخت کرتے ہوئے VPN سروسز کے استعمال کے الزام میں تقریباً 1100 افراد کے خلاف کارروائیاں کی اور گھر گھر تلاشی اور سڑکوں پر شناختی پریڈ کا سلسلہ تیز کر دیا ہے. کشمیری عوام کے حق کی خود ارادیت اور مقبوضہ علاقے میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو اجاگر کرنے کے لیے واشنگٹن میں ورلڈ کشمیر اویئرنیس فورم کے زیر اہتمام موبائل ڈیجیٹل بل بورڈز مہم چلائی گئی. ڈیجیٹل ٹرکوں پر نصب بل بورڈز پر کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حق میں پیغامات درج تھے.
बैनुल अक़वामी खबरों में आपको बताएंगे वेनेजुएला की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में चीन और रूस ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया को फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया है। इजलास में अमरीकी फौजी कार्रवाई को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने वेनेजुएला की सूरत हाल पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा है कि वेनेजुएला में अमरीकी फौजी कार्रवाई में बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी नहीं की गई। तमाम फरीक अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पासदारी करें। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के कायम मुकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून ने हंगामी इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान वेनेजुएला में हालिया पेशरफ्त को गहरी तशवीश की नज़र से देखता है। कैरेबियन खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी और अदम इस्तेहकाम इलाकाई और आलमी अमन और सलामती के लिए दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा कि आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता मुकालमा और सिफारतकारी होना चाहिए। वेनेजुएला के मंदूब ने कहा कि अमरीका ने सदर निकोलस और उनकी अहलिया को अगवा किया और हमारी सरजमीन पर बम गिराए गए। इजलास से खिताब में रूसी मंदूब ने वेनेजुएला पर अमरीकी हमले की मजम्मत करते हुए सदर मादुरो और उनकी अहलिया को रिहा करने का मुतालबा किया। रूसी मंदूब ने कहा कि अमरीका वेनेजुएला के कुदरती वसाइल पर कब्जा करना चाहता है। अमरीका के इरादे किसी से पोशीदा नहीं है। इजलास से खिताब में चीनी मंदूब ने कहा कि अमरीका ने लातीनी अमरीका और कैरेबियन जज़ायर का अमन खतरे में डाल दिया। अमरीका ने बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल पर पाबंदी का उसूल भी तोड़ा है। बात करेंगे गाजा की सूरत हाल की, जहां अल-मवासी पनाह गुज़ीन कैंप की खैमा बस्ती पर इसराइली हेलीकॉप्टर्स ने शेलिंग की, जिसमें कमसिन बच्ची समेत 2 अफराद शहीद और 4 जख्मी हो गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक जख्मियों को नसीर मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया है। फ़लस्तीनी सिविल डिफेंस के मुताबिक मकाजी कैंप के वस्ती इलाके में इसराइल के एक और हमले में फ़लस्तीनी खातून और उसकी बच्ची शहीद हो गई। जंगबंदी मुआहदे के बाद इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 422 हो गई। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक गाजा की 88% इमारतें मुनहदिम होने से 20 लाख फ़लस्तीनी खैमों में रहने पर मजबूर हैं। कुछ कौमी खबरें शामिल करते हैं। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने मखदूम सैयद अहमद महमूद ने लाहौर में मुलाकात की और मजमूई सियासी सूरत हाल समेत जनूबी पंजाब के अवाम के मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। चेयरमैन सेनेट ने जनूबी पंजाब के अवाम के लिए अपनी वाबस्तगी का इयादा करते हुए कहा कि वो खित्ते में मसावी तरक्की, मौशी बेहतरी और समाजी इंसाफ के फरोग के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान नासिर से डीजी सिविल एविएशन नादिर शफी डार ने पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात की। इस दौरान सिविल एविएशन के शोबे को दरपेश चैलेंजेस और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट ने अवाम को सस्ती और मयारी फ़ज़ाई सफ़र की सहूलतें फराहम करने की हिदायत की। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि मदारिस अमन और रवादारी के पैगंबर हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में ज़ल्मी मदरसा लीग पंजाब की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मदारिस के बच्चों को खेलों में हिस्सा लेते देख कर खुशी हुई। उन्हें दीनी तालीम के साथ मदारिस के तलबा को AI, जदीद उलूम और खेलों की सहूलियात भी मिलनी चाहिए। तकरीब से खिताब में सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा कि पंजाब के स्कूलों में 2000 स्पोर्ट्स ग्राउंड्स बनाए जा रहे हैं, जो मदारिस और निजी इदारों के लिए भी खुले होंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने ईदगाह शरीफ रावलपिंडी में पीर नकीबुर रहमान से मुलाकात की, जिसमें मुल्की हालात, अमन और रवादारी और कौमी यकजहती पर तबादला ख्याल हुआ। गवर्नर सिंध ने कहा कि अमन भाईचारे के फ़रोग में मजहबी क़यादत का किरदार कलीदी है। इस मौके पर मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। डेरा लयार जाफराबाद में पुरानी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी की डिजिटल लाइब्रेरी में तब्दीली। ये तब्दीली कैसे आई, रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से वक़ार अहमद। जाफराबाद बलूचिस्तान में पहली डिजिटल लाइब्रेरी, नए साल की पहली बड़ी तब्दीली। मुस्तकबिल के 2.0 के विजन के साथ जाफराबाद में डिजिटल लाइब्रेरी का इनकलाब जिला इंतजामिया, पॉवर्टी एलिवेशन फंड और वर्ड्स के इश्तिराक से अमल में आया। मैं एक स्टूडेंट हूँ। वर्ड्स PPF की फंडेड से बनाई गई है। यहाँ हम आते हैं, यहाँ हम स्टडी करते हैं। जाफराबाद के लिए ये सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं बल्कि जदीद कंप्यूटर्स, हाई स्पीड वाईफाई और 10,000 प्लस ई-बॉक्स के साथ डिजिटल किताबों का खजाना भी है। लाइब्रेरी का मकसद नौजवानों को डिजिटल एक्सेस भी देना है। अभी लाइब्रेरी रिहेबिलिटेट हो गई है, फंक्शनल पोजीशन में है। अदर सो मेनी फील्ड्स इन व्हिच दे कैन एक्सेल एंड दे कैन सर्व पाकिस्तान। जाफराबाद की यूथ को अब खुद आगे बढ़ना है। लाइब्रेरी पढ़ने की जगह है, लेकिन ऑनलाइन डिजिटल कोर्सेज का हब भी बन सकती है। लाइब्रेरी में ऑनलाइन ई-कॉमर्स, फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग, कोडिंग और डिजिटल मार्केटिंग या क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्सेज भी किए जा सकते हैं। इंतहाई उम्दा और आला तरीन लाइब्रेरी है जाफराबाद के हवाले से। यहाँ से नौजवान मुख्तलिफ फील्ड में जाके अपने इलाके को, अपने सूबे को
اور اپنے ملک کو جو ہے نا ان کی نمائندگی کریں گے. जाफराबाद डिजिटल लाइब्रेरी का ये मॉडल पॉवर्टी एलिवेशन का मॉडल भी बन सकता है. गुर्बत सिर्फ पैसे से नहीं, इल्म की कमी से भी होती है और इस इल्मी गुर्बत को अब हमें खुद ही खत्म करना है. वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा. सेनेट की कायम कमेटी बराए दिफा का इजलास सेनेटर तलहा महमूद की सदारत में हुआ, जिसमें कोयटा के लिए फ़ज़ाई किरायों में गैर मामूली इजाफे और चित्राल के लिए PIA परवाज़ों की मुअत्तली पर गौर किया गया. कमेटी ने कोयटा के लिए महंगे फ़ज़ाई किरायों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और किरायों के हद मुकर्रर करने के लिए कीपिंग मैकेनिज़्म मुतारिफ कराने की सिफारिश की. कमेटी को पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल और पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहदे पर इन कैमरा ब्रीफिंग भी दी गई. खेलों की खबरों में खुशामदीद और सबसे पहले बात करते हैं। पाकिस्तान ने 3 मुल्की अंडर 19 वनडे सीरीज जीत ली। हरारे में खेले गए फाइनल में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 9 विकेटों से कामयाबी हासिल की। जिम्बाब्वे की टीम पहले बैटिंग करते हुए 44.4 ओवर्स में 158 रन बनाकर आउट हो गई। माइकल ब्लगनोट 60 रन के साथ नुमाया रहे। पाकिस्तान की जानिब से उमर ज़ेब ने 4 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने 159 रन का हदफ 16.2 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। ओपनर समीर मिन्हास ने जारहाना बैटिंग करते हुए 42 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की, जो अंडर 19 क्रिकेट की तेज तरीन सेंचुरी है। समीर मिन्हास ने 51 गेंदों पर 114 रन की इनिंग्स खेली। इनकी इनिंग्स में 5 छक्के और 17 चौके शामिल थे। मोहम्मद शायान 38 रन पर नॉट आउट रहे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने शानदार फतह पर पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद देते हुए अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान पाकिस्तान सुपर लीग खेलेंगे। मुस्तफिजुर रहमान ने पाकिस्तान सुपर लीग के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दी। मुस्तफिजुर रहमान इससे कबल PSL में लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी कर चुके हैं। उन्होंने लाहौर कलंदर्स की जानिब से अब तक 5 मैच खेले हैं और 4 विकेटें हासिल की। वो बांग्लादेश प्रीमियर, इंटरनेशनल लीग T20, लंका प्रीमियर लीग और वाइटैलिटी लीग में भी सलाहियतों का मुजाहरा कर चुके हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर आसिफ अकबर ने 2 टोक अल्फाज में कहा है कि इनकी टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने किसी सूरत भारत नहीं जाएगी। आसिफ अकबर ने भारत के हवाले से सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि ICC का श्रीलंका या बांग्लादेश को वेन्यू के तौर पर मुंतखब करना अलग मामला है। हमने फैसला किया है कि भारत नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ हम महफूज नहीं हैं। IPL की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को हिंदू इंतहा पसंदों की धमकियों के बाद लीग से बाहर कर दिया था, जिसके बाद दोनों क्रिकेट बोर्ड के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हो गए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हंगामी इजलास बुलाते हुए अपनी टीम भारत ना भेजने का ऐलान किया, जबकि बांग्लादेश की हुकूमत ने IPL की नशरियात पर पाबंदी लगा दी है। बांग्लादेश ने ICC को अपनी टीम भारत ना भेजने के हवाले से भी आगाह कर दिया है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचेस की T20 सीरीज का आगाज कल से दंबोला में हो रहा है। मुकाबला शाम 6:30 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पे बराह रास्त दिखाया जाएगा। दंबोला में सीरीज ट्रॉफी की रुनुमाई हुई। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा और श्रीलंका के दाशन शनाका ने ट्रॉफी की रुनुमाई की। सीरीज का दूसरा मैच 9 जनवरी, तीसरा मैच 11 जनवरी को दंबोला में ही खेला जाएगा। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए अहम करार दी जा रही है। हालिया 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 3 फतुहात हासिल की हैं। एशेज सीरीज के 5वें टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 134 रन की बढ़तरी हासिल हो गई है और इसकी 3 विकेटें अभी बाकी हैं। टेस्ट के तीसरे रोज खेल के अख्ताम पर ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 518 रन बनाए और इसके 7 खिलाड़ी आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया ने 166 रन 2 खिलाड़ी आउट से बैटिंग शुरू की तो ट्रेविस हेड ने 163 रन की शानदार इनिंग्स खेली। उन्होंने 1 छक्का और 24 चौके लगाए। उस्मान ख्वाजा 17, एलेक्स कैरी 16 और कैमरन ग्रीन 37 रन बना सके। कप्तान स्टीवन स्मिथ ने सेंचुरी स्कोर की और 129 रन पर नॉट आउट हैं। इनकी इनिंग्स में 1 छक्का और 15 चौके शामिल हैं, जबकि ब्यू वेबस्टर भी 42 रन पर नाकाबिल शिकस्त हैं। इंग्लिश टीम की जानिब से ब्रैंडन कार्स ने 3 और बेन स्टोक्स ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पहली इनिंग्स में इंग्लैंड ने 384 रन बनाए थे। 5 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 3-1 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। एशेज सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पे बराह रास्त दिखाई जा रही है।
बिग बैश क्रिकेट लीग में एडलेड स्ट्राइकर्स ने सिडनी थंडर्स को दिलचस्प मुकाबले के बाद 6 रन से हरा दिया। एडलेड में खेले गए मैच में एडलेड स्ट्राइकर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 165 रन बनाए। मैकेंजी हार्वे ने 38 और जेसन सिंघा ने 31 रन स्कोर किए। लियाम स्कॉट 49 रन पर नॉट आउट रहे। सिडनी थंडर की जानिब से वेस एगर ने 3 विकेटें हासिल की। नेथन मैकेंड्रू ने 2 जबकि डेविड विले और डैनियल सैमर के हिस्से में 1-1 विकेट आई। सिडनी थंडर की टीम 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 159 रन बना सकी। ओपनर डेविड वार्नर और मैथ्यू जेल्क्स ने टीम को 73 रन का आगाज दिया, तमाम बाद में आने वाले बल्लेबाज नुमाया स्कोर नहीं कर सके। डेविड वार्नर 67 रन पर नॉट आउट रहे, जबकि मैथ्यू जेल्क्स ने 43 रन बनाए। एडलेड स्ट्राइकर्स के जिमी ऑल्टन ने 3 और लाइट पॉप ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। बिग बैश क्रिकेट लीग PTB स्पोर्ट्स HD पे बराह रास्त दिखाई जा रही है। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।